Hello students, a very fresh and beautiful morning to all of you. How are you all? I hope you all are in good health and taking great care of yourself. Welcome back to our English grammar class. In the previous class students, we completed the revision of chapter number 21, that is kinds of sentences. Today we are going to revise our chapter number 1 and 2. As chapter number 1 is too small, so we are just going to brief this chapter and then we will move ahead with our second chapter, that is common, proper and abstract nouns, right? So we are going to see this, and after that we would be solving the worksheet which I have already provided you, right? The worksheet which I gave you before and which you have already submitted to me. We are going to solve both the worksheet so that if you have any query related to it, we can just clarify it, right? And today we would be seeing first chapter, that is nouns revision. So please open your grammar book, students, all of you, and pay attention in your book, okay? Now let's see what are nouns. Nouns is the topic which you have been studying since you were in grade 1, right? Okay, so what are nouns, students? You have studied before, right? Nouns are the naming words of a person, place, animal, thing, idea or feeling. किसी भी चीज़ का नाम, whether it's a person, place, animal, thing, idea or feeling, your qualities, your feelings, your emotions, right? So there are so many things, and each and everything has a name, and that naming word is called noun. For example, Vibha is happy because she won the first prize. Now in this sentence, students, Vibha is happy because she won the first prize. Vibha is a noun, है ना, एक लड़की का नाम है, and prize, it's a thing, it's a name of a thing, so both are nouns. Mr. Gupta lives in Kanpur. He won a prize for his bravery. यह Mr. Gupta जो है वो भी नाम ही है, ठीक है, वो गलती से शायद बोल्ड नहीं हुआ है, लेकिन वो भी नाम है. इट्स अ नाउन, इट्स अ प्रॉपर नाउन, ओके. एंड देन कानपुर, दैट इज़ अ नेम ऑफ प्लेस, सिटी है ना. एंड ही वन अ प्राइज फॉर हिज ब्रेवरी लास्ट ईयर. सो प्राइज इज अगेन नाउन, ब्रेवरी एक क्वालिटी है ना, एंड ईयर इज अगेन अ नाउन, ओके. And the third sentence is Rohan is flying a kite with his sister. So here, students, Rohan is the name of a person, kite is a thing, and sister is again a person, है ना. तो आपको ये ध्यान में रखना है कि when we are talking about the name of a person, place, animal, thing, idea or feeling, then those naming words are considered to be noun. Okay, right now we are just going to learn which things comes under the category of noun. हमें उसका bifurcation next chapter में देखना है, ठीक है. Common, proper, abstract, collective, there are many bifurcations, बहुत सारी categories हैं nouns की, लेकिन हम लोग अभी सिर्फ nouns find out कर रहे हैं, ठीक है. जैसे ये वाली exercise है which is already done, so I would be just doing it quickly. Let's see that. My elder sister has an red umbrella. So here, sister and umbrella both are nouns. I am not going to circle it, I am just putting an underline over there. You need to circle the words. Okay, noun जो है उसको circle करना है. Honesty is the best policy. Honesty जो है वो एक quality है और वो एक policy है, मतलब that is a thing. So both are nouns. The postman delivered 2 letters in the morning. Here postman is the noun and letters is also a noun, है ना. एक person है और एक thing है. I saw elephants and lions at the zoo. Elephants is the noun, lions is also noun, है ना, दोनों animals है. और zoo जो है वो क्या है, what is that? It's a name of a place, right? Let's see fifth one. It is cold in the month of December. It is cold in the month of December. So यह month जो है वो हमारा noun है और December वो भी noun है. month और December दोनों
एक ही चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन एक कॉमन नाउन है और दूसरा प्रॉपर नाउन है, इसीलिए दोनों आएंगे। ठीक है। जयपुर इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान। यर जयपुर कैपिटल एंड राजस्थान। जयपुर एंड राजस्थान बोथ आर सिटी, सॉरी जयपुर इज़ अ सिटी एंड राजस्थान इज़ अ स्टेट। ओके, दैट मीन्स प्लेस है दोनों। एंड कैपिटल का मतलब यहाँ पे क्या है, कैपिटल सिटी है। ठीक है, कैपिटल का मतलब क्या है यहाँ पर, कैपिटल सिटी, इसीलिए हमें इसे नाउन में लेना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट वन, माई मदर इन्वाइटेड माई फ्रेंड्स फॉर लंच। सो योर mother is the subject, sorry, yes it is a subject, but yes it's a noun, and friends, right? And lunch, lunch is, you can consider it as the food which you have it in afternoon, right? afternoon के time पर जो खाना खाते हैं हम लोग, है ना? so afternoon time का जो खाना है वो, so all the three things comes under the category of noun. Next one, Rajendra Prasad was the first president of India. Rajendra Prasad was the first president of India. Here Rajendra Prasad, president and India, ये तीनों हैं हमारे nouns, है ना? Rajendra Prasad and president are same, लेकिन एक common है और एक proper है। ठीक है, वो हम लोग next chapter में पढ़ेंगे। और दोनों ही क्या है हमारे नाउन्स है, नेम ऑफ अ पर्सन। एंड इंडिया जो है वो क्या है, इट्स अ प्लेस। नेक्स्ट वन, पंकज इज़ हैविंग अ बोल ऑफ सीरियल फॉर ब्रेकफास्ट। यह पंकज इज़ द नाउन, बोल मतलब एक यूटेंसिल है, सो दैट इज़ अगेन अ नाउन। सीरियल खाने की चीज़ है ना? एंड ब्रेकफास्ट ऑल्सो। ठीक है, ब्रेकफास्ट जैसे लंच है वैसे ही ब्रेकफास्ट है ना? लंच हमने कैसे कंसिडर किया नाउन, वैसे ही हम ब्रेकफास्ट भी नाउन कंसिडर करेंगे। टॉम वेंट टू द मार्केट टू बाय ए बास्केटबॉल। यर स्टूडेंट्स, टॉम जो है वो हमारा सब्जेक्ट है एंड इट इज़ ऑल्सो नाउन। देन मार्केट जगह है वो, एंड बास्केटबॉल दैट इज़ अ थिंग। ठीक है, सो इन दिस चैप्टर स्टूडेंट्स वी जस्ट नीड टू लर्न कि कौन कौन सी चीज़ों को हम नेमिंग वर्ड्स कहते हैं, राइट? वी हैव टू लर्न दैट इन दिस चैप्टर। नाउ द बाइफर्केशन गोज इन द सेकेंड चैप्टर, सो वी आर गोइंग टू सी दैट इन द सेकेंड चैप्टर। यहाँ पे ये जो नाउन्स है उसको हमें कैटेगरी में डिवाइड करना है, एंड वी हैव ऑलरेडी डन इट बिफोर, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट अगेन सो दैट आपको क्लियर हो जाए। वैसे हमने रिवीजन भी कर लिया है इस चैप्टर का, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे लाइव क्लास में पूछ लेना। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड चैप्टर, दैट इज़ कॉमन, प्रॉपर एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, राइट? एज आई टोल्ड यू बिफोर कि हमने जो फर्स्ट चैप्टर देखा था उसमें हमने सिर्फ नेमिंग वर्ड्स देखे थे, राइट? जो पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के होते हैं। अभी वही सारे नेमिंग वर्ड्स जो है उसे हम डिवाइड करते हैं इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, एंड आउट ऑफ दोज डिफरेंट कैटेगरीज वी आर गोइंग टू स्टडी कॉमन, प्रॉपर एंड एब्स्ट्रैक्ट इन चैप्टर नंबर 2. ओके, सो लेट्स सी द एक्सरसाइज ओवर हियर. See, write the correct nouns for each type यूजिंग द वर्ड्स इन द बॉक्स. यहाँ पर बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, वो हमें यूज़ करने हैं, राइट? पीपल हु हेल्प अस, अभी उसके सामने आपको लिखना है कि कौन कौन से लोग हैं जो हमें हेल्प करते हैं. सो लेट्स सी दैट. वी कैन राइट टीचर, then nurse and policeman, right? We can write these three: teacher, nurse and policeman. Do you think we have anything else over here? No. The name of towns and cities.
टाउन्स एंड सिटीज़। अभी टाउन्स एंड सिटीज़ पूरी एक जनरल कैटेगरी है ना। टाउन्स मतलब काफ़ी सारे टाउन्स होंगे, सिटीज़ भी काफ़ी सारे होंगे, उसके अलग अलग नाम यहाँ ऊपर बॉक्स में दिए हुए हैं। सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। जैसे कि है ऊटी, फिर है लखनऊ, देन वी हैव हैदराबाद, यस, एनीथिंग एल्स? नो, ठीक है। नाउ डोमेस्टिक एनिमल्स के नाम लिखने हैं। सो विच आर द डोमेस्टिक एनिमल्स? Let's find out. We have dog, then we have goat and cow, है ना। और वाइल्ड एनिमल्स के अंदर कौन से आएंगे? बेयर, ज़ीब्रा and lion, right? And last one, name of the flowers. Which are they? Sorry. We have lily, rose and marigold. Okay. So if you notice over here students, यहाँ पर हमें एक ही कैटेगरी को बिलोंग करने वाले काफ़ी सारे नाम लिखने हैं, राइट? व्हाट वी डिड ओवर हियर, we wrote the name of some animal, something, some place, some person, है ना, which belongs to one specific category, right? Now and in the same way हम common और proper nouns divide करते हैं, ठीक है? Okay, so now let's see common and proper nouns, students. First we'll go through the sentences so that we can have a proper idea about what are common and what are proper nouns. The first one is Piyali is a teacher. Second is Mumbai is a largest city in India. Burj Khalifa is a very tall building and my pet cat Doris is 2 years old. So here students, if we see the first sentence, Piyali and teacher, दोनों ही nouns है ना, both are nouns. लेकिन पियाली जो है वो एक टीचर का स्पेसिफिक नेम है। अभी टीचर तो काफ़ी सारी होती है ना। आपके कितने सारे टीचर्स हैं, हिंदी की अलग, इंग्लिश की, मैथ्स की, एसएसटी की, साइंस की, आर्ट, है ना। सो देर आर सो मैनी टीचर्स एंड ईच टीचर हैज़ अ डिफरेंट नेम। लेकिन अगर हम टीचर कहते हैं तो सब आ जाते हैं उसमें, है ना, सारे ही टीचर्स आ जाती है। लेकिन जब उनका हम स्पेसिफिक नेम बोलते हैं, जैसे कि मेरा नाम है फ़ातिमा, है ना, आपकी एसएसटी की या साइंस की जो टीचर है प्रवीणा मैम है, राइट, वैसे डिफरेंट जो टीचर्स का नाम है वो स्पेशल नेम हो जाता है, ठीक है। तो जो कॉमन जनरल यूज़ करते हैं हम लोग, जो कॉमनली यूज़ किया जाता है फॉर ए स्पेसिफिक कैटेगरी, ठीक है। अभी टीचर का पूरा जो कैटेगरी है उसके लिए हम टीचर्स लिखते हैं, मतलब वो कॉमन नाउन हो जाता है, उसमें कोई भी टीचर हो सकता है ना, साइंस का टीचर, इंग्लिश का, मैथ्स का, कोई भी टीचर हो सकता है ना। लेकिन जब हम उसका नाम देते हैं टीचर का तो वो हमारा स्पेशल नेम हो जाता है। क्या हो जाता है? स्पेशल नेम हो जाता है, ओके। इन द सेम वे Mumbai is the largest city in India. Mumbai is a noun, city is a noun and India is a noun, right? अभी यहाँ पे मुंबई और इंडिया जो है वो नाम है एक स्पेसिफिक सिटी का और एक कंट्री का। मुंबई जो है वो एक सिटी का नाम है। सिटीज़ तो बहुत सारी होती है ना, इंडिया में कितनी सारी सिटीज़ है, इसीलिए उसका अगर हम स्पेशल नेम देते हैं, जैसे कि ये मुंबई है ना, और अगर उसको हम कॉमनली गिनते हैं इन जनरल पूरा एक कैटेगरी, तो क्या होगा? सिटीज़, बहुत सारी सिटीज़ है, तो सिटी जो है यहाँ पर वो हो जाता है हमारा कॉमन नेम, है ना, या नाम। और उसका जब हम स्पेशल नाम देते हैं वो होता है हमारा प्रॉपर नाम, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर है इंडिया। इंडिया इज़ अगेन अ नेम ऑफ अ कंट्री। नाउ कंट्री लिखा है
तो कंट्री तो कोई भी हो सकती है ना, इट कुड बी एनी कंट्री, बहुत सारी है तो कोई भी कंट्री हो सकती है। लेकिन जब हमने उसका स्पेशल नेम दिया इंडिया, then India is our proper noun. Okay students, now let's see next sentence. Burj Khalifa is a very tall building. In this sentence students, Burj Khalifa is a noun and building is also a noun. So here when we are talking about Burj Khalifa is a very tall building, buildings तो बहुत सारी हो सकती है ना, अलग अलग बहुत सारी buildings है। कोई भी मान लो बड़ी सी बिल्डिंग ऐसे खड़ा है, पूरा 5-7 फ्लोर्स के पूरी बिल्डिंग है, तो उसको हम बिल्डिंग ही कहते हैं, कहीं पर भी हो। लेकिन जब हम उसको स्पेशल नेम दे देते हैं तो वो हो जाता है हमारा प्रॉपर नाउन, और बिल्डिंग जो है वो कॉमन नाउन। माई पेट कैट डोरिस इज़ 2 years old। यहाँ पे कैट एंड डोरिस दो चीज़ है। अभी कैट बहुत सारी होती है ना, कैट्स आर सो मैनी, लेकिन आपका जो अलग से पेट है खुद का, उसका नाम डोरिस है। तो डोरिस जो है वो आपकी कैट को आपने स्पेशल नेम दिया है, इसीलिए डोरिस जो है वो प्रॉपर नाउन होता है। ठीक है। सो इन दिस सेंटेंसेस टीचर, सिटी, बिल्डिंग एंड कैट आर कॉमन नेम्स ऑफ पीपल, प्लेस, एनिमल एंड थिंग। राइट, नेम्स है, कॉमन नेम्स है जो हम इन जनरल सबके लिए यूज़ करते हैं, है ना। जैसे स्टूडेंट्स है, टीचर्स है, बेबी है, नर्स है ना, जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं सबके लिए। डॉक्टर्स है, सबके लिए यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स तो बहुत सारे हैं। स्कूल्स है, रिवर्स है, माउंटेन्स है ना। जब हम माउंटेन कहते हैं तो वो कॉमन होता है, लेकिन जब हम उसे स्पेसिफिक नाम देते हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट है ना, तो वो माउंट एवरेस्ट क्या हो गया, आपका प्रॉपर नाउन हो गया। हिमालयास प्रॉपर नाउन हो गया। रिवर्स, रिवर लिखा है, बहुत सारी रिवर्स है, कॉमन हो गई। और अगर हमने उसको नाम दे दिया नर्मदा रिवर या तापी रिवर या गंगा रिवर, देन दैट बिकम्स प्रॉपर नाउन। ओके, सो दैट हाउ इट वर्क्स व्हेन यू आर व्हेन अ नेम is given in common to all people, place, animal or thing, then those are considered to be common noun. Okay, and Piali, Mumbai, India, Burj Khalifa and Doris are particular, particular मतलब special names of people, place, animal and things, and that is the reason they are called proper nouns. Okay, जब किसी चीज़ को हम स्पेशल नाम दे देते हैं या पर्टिकुलर नाम देते हैं, देन दोज नाउन्स आर कंसिडर्ड टू बी प्रॉपर नाउन. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट आर प्रॉपर नाउन्स. Okay, so a proper noun is the name given to a specific person, place or animal. ठीक है, a proper noun is a name given to specific person, place or animal. ठीक है, जैसे कि नेम ऑफ प्लेसेस, रिवर्स, ओशियंस एंड सीज. प्लेसेस, रिवर्स, ओशियंस एंड सीज. अभी ओशियंस बहुत सारे हैं, सी, रिवर, प्लेसेस बहुत सारी है ना. लेकिन जब हम उसे एक प्रॉपर या स्पेशल नेम देते हैं, जैसे कि गंगा है, सॉरी कैनेडा, गैंजेस, पैसिफिक ओशियन, अरेबियन सी, यूनाइटेड नेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन. ओके, सो दोज आर कंसिडर्ड टू बी प्रॉपर नाउन. हम अगर लिखते हैं, सॉरी, इफ वी आर राइटिंग रिवर, दैट इज कॉमन, है ना. लेकिन अगर मैं लिखती हूँ नर्मदा, देन दैट बिकम्स प्रॉपर. ओके, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कंट्री, दैट इज कॉमन. इफ आई से इंडिया, देन दैट इज प्रॉपर. स्कूल्स कॉमन, आत्मीय ग्रीन प्रॉपर. ठीक है. वैसे नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, इसमें यूनाइटेड नेशंस है, इंडियन एयरफोर्स है, अलग अलग बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं. तो वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस का जो स्पेशल नेम होता है, दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी प्रॉपर नाउन.
देन फेमस बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स जैसे हमने अभी बुर्ज खलीफा के बारे में पढ़ा था, है ना, वैसे ही इंडिया गेट है, ताजमहल है, ये जो सारे हैं उनके लिए भी हम इसको भी हम प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में ही ऐड करेंगे। बिल्डिंग्स लिखा है, देन देर आर मैनी बिल्डिंग्स इन द सिटी, राइट, देर आर मैनी बिल्डिंग्स इन द सिटी। अगर ऐसा सेंटेंस लिखा है तो उसमें बिल्डिंग्स और सिटी दोनों ही कॉमन नाउन हो गए, है ना। लेकिन अगर हम ऐसा लिखते हैं कि ताजमहल इज़ सिचुएटेड इन आगरा, है ना, लोकेटेड इन आगरा, द ताजमहल इज़ लोकेटेड और सिचुएटेड इन आगरा, तो ताजमहल और आगरा दोनों क्या हुए हमारे प्रॉपर नाउन हुए, क्योंकि उनको हमने उनको स्पेशल नाम दे दिया है। वी हैव गिवन अ पर्टिकुलर नेम टू दैट प्लेस, सो दैट्स वाई वी कंसिडर इट एज अ प्रॉपर नाउन। देन वी हैव लैंग्वेजेस, हिंदी, तमिल एंड फ्रेंच। कोई भी लैंग्वेज हो स्टूडेंट्स, विच एवर लैंग्वेज वी आर टॉकिंग अबाउट, इट कम्स एज अ प्रॉपर नाउन, ओके। मंथ्स एंड डेज ऑफ वीक, अक्टूबर, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। मंथ्स लिखा है तो कॉमन, और अगर जनवरी फरवरी लिखा है तो प्रॉपर। टाइटल्स, मिस, मिस्टर, मिसेस, है ना, ये सारे जो टाइटल्स हैं, मतलब हम लोग नाम के पीछे आगे लगाते हैं, सॉरी, दोज आर टाइटल्स, वो भी हमें प्रॉपर नाउन में ही गिनना है। एंड फेस्टिवल्स एंड स्पेशल डेज, फेस्टिवल्स जो भी फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं, या नेशनल हॉलीडेज़ है जैसे इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे है, फिर फेस्टिवल्स है जैसे क्रिसमस, दिवाली, ईद, है ना, तो वो सारी जो फेस्टिवल्स के नाम है वो भी हम प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में लेते हैं, राइट। देन वी हैव बुक्स, फिल्म्स एंड न्यूज़पेपर। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक बुक, बुक का जब हम नाम बात कर रहे हैं, बुक के नाम के बारे में, दैन दोज आर कंसिडर्ड टू बी प्रॉपर नाउन। बुक्स बहुत सारी है, लेकिन जब हम उसके अंदर एलिस इन वंडरलैंड की बात करते हैं तो एलिस इन वंडरलैंड प्रॉपर नाउन होगा, राइट। फिल्म, देयर आर मैनी, बट इफ़ वी से लायन किंग, देन द लायन किंग इज़ प्रॉपर नाउन। न्यूज़पेपर्स मैनी, लेकिन द हिंदू एक न्यूज़पेपर का नाम है, ठीक है, तो द हिंदू जो है वो हम प्रॉपर नाउन में लिखेंगे, ठीक है। एंड वन मोर थिंग यू नीड टू रिमेंबर स्टूडेंट्स अबाउट प्रॉपर नाउन इज अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन्स विद अ कैपिटल लेटर। द सन, मून एंड स्काई आर नेम्स ऑफ द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स, बट दे आर नॉट रिटर्न विद अ कैपिटल लेटर। ये हमने पढ़ा है कि हम प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं, मतलब उसका पहला लेटर हम कैपिटल ही लिखते हैं, राइट। लेकिन सन, मून एंड स्काई जो एक ही है ना, दोज आर यूनिक, उसके जैसा और कुछ नहीं है, स्काई एक ही है, सन एक ही है ना, लेकिन फिर भी हम उसको कैपिटल लेटर में नहीं लिखते हैं, ओके। वी डोंट यूज़ अ कैपिटल लेटर विद इट, ओके। नाउ ये जो एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स वी हैव ऑलरेडी डन, so we are just going to revise it quickly, okay. Write whether the following are common or proper nouns. So here students, Jack is a proper noun, नाम है किसी का। Then muffin, that is common, है ना, खाने की चीज़ है, उसमें कुछ है नहीं अलग से कि किस तरह का मफ़िन है, so that's why it is common noun. Then beehive, एंड मोस्टली वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, अगर थिंग्स है तो थिंग्स में ज़्यादातर हम कॉमन नाउन ही देखते हैं, प्रॉपर नाउन नहीं मिलता है, ठीक है। beehive अगेन कॉमन नाउन, इट्स अ थिंग। ईस्टर, दैट इज़ अ फेस्टिवल, इट इज़ अ फेस्टिवल विच इज़ सेलिब्रेटेड बाय क्रिश्चियंस जो होता है ना वो सेलिब्रेट करते हैं ये फेस्टिवल ईस्टर, एंड दैट्स वाई दैट इज़ प्रॉपर। लाइब्रेरी, देर आर मैनी लाइब्रेरीज, है ना, लेकिन कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है यहाँ पे, मतलब ये सी। शॉप, दोज आर ऑल्सो मैनी, दैट्स वाई वी आर गोइंग टू राइट सी। हैरी पॉटर, दैट इज़ अ स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्सन, दैट्स वाई इट्स प्रॉपर। जून, अगेन द नेम ऑफ अ मंथ, दैट मीन्स प्रॉपर नाउन। डोनाल्ड, दैट इज़ ऑल्सो अ नेम, दैट मीन्स प्रॉपर। एंड मार्केट, दैट इज़ कॉमन, है ना। अभी ये दूसरी एक्सरसाइज जो है उसमें हमें प्रॉपर नाउन्स
को सर्कल करना है एंड अंडरलाइन द कॉमन नाउन्स. लेट्स सी. माई कज़िन गेव मी द बुक द थ्री मस्केटियर्स. Your students, what do you think? What are the nouns over here? देखो, सबसे पहले तो नाउन है कज़िन, उसके बाद है बुक और उसके बाद है द थ्री मस्केटियर्स. नाउ यहाँ पे कज़िन जो है उसका नाम नहीं दिया है, इसीलिए वो कॉमन नाउन है ना. फिर बुक है, सो बुक कुड बी एनी एंड दैट्स वाई इट इज़ कॉमन नाउन. और ये बुक का नाम है एक स्पेसिफिक, द थ्री मस्केटियर्स. दैट इज़ द नेम ऑफ अ बुक and that's why it is considered to be proper noun. Okay, then the next thing, Nisha and Beena are sisters. Nisha and Beena are sisters. तो यहाँ पे sisters जो है वो common है और Nisha and Beena ये दोनों जो है वो special name है, इसीलिए ये proper noun है. Bruno is a small dog but he likes to fight with big dogs. Bruno is a small dog but he likes to fight with big dogs. So here students, Bruno जो है वो भी noun है और dog जो है वो भी noun है, but dog could be any, right? So ये दोनों जो है dog and dogs, that is common, but a special name is given to one dog, that is Bruno, and that's why that is proper noun. Sheba likes to wear dresses but Shruti likes to wear saris. So here students, dresses and saris, that could be any, इसीलिए वो common noun है. लेकिन person को एक specific नाम दिया गया है, शीबा and श्रुति, तो ये दोनों होंगे हमारे proper nouns. Next one, the Mona Lisa is a famous painting. Here students, द मोनालिसा इज़ अ फेमस पेंटिंग. पेंटिंग काफ़ी सारी होती है अलग अलग, है ना, तो पेंटिंग हम कॉमन नाउन रखेंगे और मोनालिसा एक स्पेसिफिक पेंटिंग का नाम है, इसीलिए उसे हम प्रॉपर नाउन में रखेंगे. ठीक है. रामदीनी इज़ माई नेबर. योर नेबर, इट कुड बी एनी, बहुत सारे नेबर्स होते हैं हमारे, सो दैट इज़ कॉमन. लेकिन स्पेसिफिक वाला है, नाम दिया हुआ है स्पेशल, दैट इज़ रामदीनी, सो दैट इज़ आवर प्रॉपर नाउन. दयाराम एंड सुखी आर क्लेवर कारपेंटर्स. सो योर दयाराम, सुखी एंड कारपेंटर्स आर द नाउन. नाउ कारपेंटर्स आर मैनी, सो दैट इज़ कॉमन. और ये दो कारपेंटर है जिसका नाम दिया हुआ है वो है दयाराम एंड सुखी, दैट इज़ प्रॉपर नाउन. न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री. Here the nouns are New Delhi, capital and country, right? New Delhi is the capital of our country. Now as I taught you before, country बहुत सारी है, तो यहाँ पे country common noun है. Capital means capital city, है ना. capital का मतलब यहाँ पर capital city है और वो भी अलग अलग state का अलग अलग city capital होता है ना. तो capital city भी common noun आएगा. एंड न्यू दिल्ली इज़ अ स्पेसिफिक नेम ऑफ दैट सिटी, है ना, एक स्पेसिफिक सिटी का नाम है, इसीलिए वो प्रॉपर नाउन है. सुनीता प्लेज द पियानो एंड सुनिधि इज़ अ सिंगर. सुनीता प्लेज द पियानो एंड सुनिधि इज़ अ सिंगर. सो हियर स्टूडेंट्स, सुनीता एंड सुनिधि ये दोनों स्पेशल नेम है ना, इसीलिए उसे हम प्रॉपर नाउन में गिनेंगे. और सिंगर बहुत सारे होते हैं, सो दैट इज़ कॉमन. एंड पियानो इज़ अगेन अ थिंग, उसका कोई प्रॉपर नाउन, ये प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में नहीं आता है. ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वाली एक्सरसाइज एंड कॉमन एंड प्रॉपर नाउन क्लियर हो गया है. ठीक है, वी विल कंटिन्यू विद द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.